والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمدللہ تقریباً تفصیلی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اب میں مختصراً 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے اصل جو ہمارا ایجنڈا ہے اور جس کے تحت ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی الحمدللہ یہاں پہ شرکت کی ہے، وہ آپ کے سامنے مختصراً رکھ دوں۔ دیکھیں، اس وقت شادیوں کا ماحول چل رہا ہے، کثرت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں الگ الگ ہالوں میں شادیاں منعقد ہو رہی ہیں، ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے، بارات وغیرہ کی دعوتیں ہو رہی ہیں۔ ہم ان شادیوں کے موقع پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی مخالفت کرنے والے خود ہم مسلمان ہیں۔ اب آپ ہمارے مسلمانوں ہی کے درمیان دیکھ لیں کہ جب ہمارے یہاں شادیاں کی جا رہی ہیں تو کس طریقے سے کی جا رہی ہیں۔ ہمارے یہاں ایسے افراد بھی ہیں جو شادیوں میں لڑکی سے اور لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ایسے افراد بھی ہیں جو باقاعدہ انگیجمنٹ کا فنکشن کر رہے ہیں، ایسے افراد بھی ہیں جو باقاعدہ ہلدی کا فنکشن کر رہے ہیں اور اس کی رسم منا رہے ہیں، ایسے بھی افراد ہیں جو باقاعدہ مہندی کی رسم کر رہے ہیں۔ مہندی لگانا حرام نہیں ہے، لیکن مہندی کی رسم، مہندی لگانے کو رسم کی طرح منانا اور اس میں لوگوں کو جمع کرنا اور فنکشن کرنا، اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے اور اسلاف سے ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں مسلمان نکاحوں کو مسجدوں میں نہیں کر رہے ہیں، چونکہ مسجدوں میں کریں گے تو پھر گناہوں سے محفوظ رہنا پڑے گا۔ اب ہم ہالوں میں کر رہے ہیں نکاح، تاکہ وہاں پہ مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی بالکل سامنے ایک ساتھ بیٹھے ہو اور مکس گیدرنگ ہو، فری مکسنگ ہو اور وہاں پہ نکاح کیا جائے۔ ولیموں میں لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں بڑے بڑے نامی ہالوں کو بک کرنے میں، جبکہ کام اس سے کمتر کی جگہ پر ہو سکتا ہے، لیکن محض نام دکھانے کے لیے، محض ریاکاری کے لیے، محض اس لیے چونکہ فلاں شخص نے بھی اسی ہال میں کیا تھا اسی لیے ہم بھی وہی کریں گے، محض اس لیے کہ فلاں مالدار شخص نے اس طرح اپنے خاندان میں اور اپنی فیملی میں کیا تھا، اس لیے ہم بھی اس کو فالو کریں گے، تاکہ ہمیں شہر والے، خاندان والے، رشتہ دار ہمیں سمجھے کہ کتنا مالدار ہے، کتنے اسٹینڈرڈ والے ہیں۔ اس طرح شادیوں میں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہمارے محلے کے ہالوں کے باہر لوگ ناچ رہے ہیں، گانا بجا رہے ہیں، اور وہ ناچنے والے محمد عربی کے متبعین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے، وہ کوئی RSS کے آدمی نہیں ہے، وہ کوئی کسی اور تنظیم کے آدمی نہیں ہے، وہ ہم مسلمانوں میں سے جو جمعے کی نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ ٹوپیاں بھی پہنتے ہو، جو عید کی نماز بھی پڑھتے ہو، جو رمضان میں روزے بھی رکھتے ہو، لیکن جب گھر میں شادی ہو رہی ہے تو بازار پر اس طرح ناچ رہے ہیں کہ گویا اعلان کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کی مخالفت کھلے عام کریں گے، آپ روک کر دکھائیں، یہ اعلان کر رہے ہیں۔ زبان حال سے یہی اعلان کر رہے ہیں، چاہے زبان حال سے وہ اعلان نہ کرے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معاف الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، جو کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے والوں میں ایسوں کی تعداد کم نہیں ہے جو کھلے عام اس طرح شادیوں کو منعقد کر رہے ہیں جس طرح یہود و نصارہ یا لبرل اور سیکولرز کرتے ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کو کاپی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب آپ بتائیے، یہ جو اس طرح کی شادیاں ہو رہی ہے، لاکھوں ہزاروں مسلمان اب تک غزہ میں، فلسطین میں قتل کر دیے گئے، ہزاروں مسلمان آئندہ دنوں میں قتل کیے جانے والے ہیں، ان کے بچے تو مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کھلے عام ناچ رہے ہیں، ہم کھلے عام اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، ہم ناجائز طریقوں سے رسم و رواج کو اختیار کر رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں، محض اپنا ذہن سے بنائے ہوئے جو اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے، یہ ہم ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان گناہوں سے روکا جائے لوگوں کو۔ اسلام صرف اپنی داڑھی ٹوپی رکھ لینے کا نام نہیں ہے، معذرت کے ساتھ اسلام صرف چند رکعتوں کی نمازوں کو پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ تہجد گزار بن جائیں۔ اسلام مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے۔ تو جس طرح یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ جو علماء کرام آپ کے سامنے موجود ہیں، مولانا امجد صاحب ہیں، مولانا اشرف صاحب ہیں اور دیگر علماء کرام ہیں، یہ وہ حضرات ہیں اور
कई और भी उलमा है जो हर साल शादियों को सादगी के साथ करने की बात मस्जिदों से करते आए, इस साल भी कर रहे हैं और हमेशा करते आए हैं और करते जा रहे हैं और उसमें इजाफा होता जा रहा है। लेकिन माजरत के साथ हमारे मुआशरे में कोई खातिर खा तब्दीली नहीं हो रही है। लोगों में बेहिसी का ऐसा मामला है कि तब्दीली नहीं आ रही। लिहाजा इसी वजह से यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा की इस तंजीम ने, उलमा की इस जमात ने ये अहद किया, ये इरादा किया और ये अज़्म किया कि अब महज हम मस्जिदों के मिंबरों से बाज करने पर इक्तिफा नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद आपके पास आएंगे। और याद रखिए ये हमारा आखिरी मरहला है, ये हमारा आखिरी मरहला है कि हम आकर आपको समझा रहे हैं। इसके बाद अल्लाह से तो हम यही कहेंगे कि हमने बात पहुंचा दी और अल्लाह ने हमें बस इतनी जिम्मेदारी दी है। अल्लाह ने हम पे ये फर्ज नहीं किया कि आपके घर में घुसकर हाथ पकड़कर हम आपको गुनाहों से रोके, नहीं। इन्नमा अलैकल बलाग, आपका काम बात पहुंचाना है, व अलैनल हिसाब, हिसाब लेना मेरा काम है, ये अल्लाह कहता है। तो हम यहाँ इस बात की तबलीग करने आ गए, इस बात को आप तक पहुंचाने आ गए कि खुदारा इस तरह की शादियों से इज्तिनाब करें, अपने घर में शादी हो तो सुन्नत के मुवाफिक करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बरकत वाली शादी वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो, जिसमें सबसे कम खर्च हो। क्या हम अल्लाह के नबी की इस बात पर यकीन नहीं रखते, या ये कि हम अपनी शादियों में बरकत नहीं चाहते? ये हमें और आपको पूछना है अपने आप से। और इसके बाद ये भी याद रखें कि आपको कोई भी ऐसी शादी की अगर दावत मिल रही है, चाहे बारात की शक्ल में, बारात का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, जहां औरतों से मुतालबा किया जाता है लड़की वालों से कि हमारे 200 बाराती आएंगे और मटन की बिरयानी होनी चाहिए, तो चिकन की बिरयानी होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये नाजायज और हराम है, इसकी कतई इजाजत नहीं है। बारात को मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट करें, दावत आए आप माजरत कर दे और कह दे चूंकि ये गैर इस्लामी तरीका है और मैं एक मुसलमान हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारी बारात में नहीं आ सकता। अगर कोई ऐसी शादी में दावत दे जिस शादी में गाने बजाए जा रहे हैं, जिस शादी में नाचा जा रहा है, जिस शादी में पटाखे रात भर जो है पटाखे जला रहे हैं, लोगों की नींदें हराम करके रखा है, ये तो अलग जगह पर, और अल्लाह की नाफरमानी अगले जगह पर। जिन शादियों में पटाखों का इस्तेमाल हो रहा है, जिन शादियों में ढोल ताशों का इस्तेमाल हो रहा है, हम उलमाए किराम इनसे ऐलान बरात करते हैं। हम मुसलमानों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं, और ये फतवा हमारा नहीं है, ये फतवा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिगैरिना फलैसा मिन्ना, जो हमें छोड़कर किसी दूसरी कौम के तौर तरीकों को इख्तियार कर ले, वो हम मुसलमानों में से नहीं है। तो ये किसी आम मौलवी मौलाना का फतवा नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फतवा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी बात को लेकर हम आप तक आए हैं कि इस तरह की शादियों को बॉयकॉट ऐलान करें। पूरे मोहल्ले में इर्द गिर्द जितने अफराद हैं, जिनको वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, अहबाब, आपके साथी, आपके मस्जिद वाले, हर अफराद तक ये बात पहुंचाए कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान इन शादियों में शरीक नहीं होते। जिन शादियों में बेपर्दगी हो, जिन शादियों में फ्री मिक्सिंग हो, आज हम उन शादियों में शरीक होकर उसे बुरा भी नहीं समझ रहे। ऐसी जगह पे मुसलमान है। अभी हमारे एक साथी ने बताया कि एक शादी में गए जहाँ पर वेटर नहीं है, वलीमा चल रहा है, वलीमा में वेटर नहीं है, वेटरेस है, और वो वेटरेस भी कैसी है जो स्कर्ट पहनकर है। और जब उस साथी ने उस कैटरर से पूछा कि भाई आप कम से कम पूरा कपड़ा तो पहना देते, स्कर्ट पहनाकर क्यों आप इनको खड़ा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई यही डिमांड आता है, यानी हम और आप ये डिमांड कर रहे हैं, मुसलमान है जो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें वेटर नहीं वेटरेस चाहिए और इस तरह के मखसूस लिबास के साथ चाहिए। तो शर्म से डूब मरने का मकाम है, शर्म से डूब मरने का मकाम है कि ऐसे अफराद भी इस आज के जमाने में मौजूद है जो हर तरह की कुर्बानियों को बर्दाश्त कर रहे हैं और फिर भी दीन पर कायम है। और दूसरी तरफ हम हैं जो हमारे पास हर तरह की नेमतें, खाने पीने को सामान है, तिजारत है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। तो याद रखिए इस तरह की शादियों को बॉयकॉट करने का मुहिम चलाए, चाहे ये शादी आपके अपने सगे भाई की क्यों ना हो, चाहे सगी बहन की क्यों ना हो। अल्लाह के यहाँ ये उज़्र एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप कहें कि भाई अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो बुरा मान जाएगा। आप अल्लाह को नाराज करके दुनिया को खुश करने के लिए जाएं तो आप खसारे में, और अगर आपने अल्लाह को राजी कर दिया और पूरी दुनिया अगरचे आपसे नाराज हो
हो जाए, आप फायदे में और कामयाबी में है। याद रखिए उस स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए जिस स्टैंडर्ड को अल्लाह ने सेट किया है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब वो नहीं है जो बड़े हॉलों में शादियां कर ले, कामयाब वो नहीं है जिनकी शादियों में पैसे उछाले जाए उड़ाए जाए, कामयाब वो नहीं है जिनकी शादियों के ज़ेब ज़ीनत को देखकर और इंतजामात को देखकर उनकी शोहरत हो जाए। अल्लाह फरमाए कामयाब वो है जो जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। कामयाब वो है जो जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। तो अगर हमें जन्नत में जाना है तो इस तरह के मुनकरात को अपने माशरे से खत्म करना होगा और इसके खिलाफ हमें मुहिम चलानी होगी और हमें बॉयकॉट करना होगा। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जो आज यहाँ रखा गया है पूरे शहर कलकत्ता में मुख्तलिफ इलाकों में हमारे उलमाए किराम जा जाकर इस मुहिम को चलाएंगे। जैसा कि बताया हमारा अशरफ साहब ने कि कल बेल मस्जिद के पास ये मुहिम चली, आज इस जगह पर ये बात आई है, हमने आप तक बात पहुंचा दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने पूरे मोहल्ले में इस बात को आम करें और इस चीज को इतना बुरा बना दे, इन शादियों में शरीक होना इतना बुरा बना दे कि अगर कोई शरीक होना भी चाहे तो मुंह छुपा कर शरीक हो, शरीक होना भी चाहे तो माशरे से मुंह छुपा कर शरीक हो। और इंशाअल्लाह ताला कल के दिन व्हाइट हाउस के करीब इंशाअल्लाह ये इस मुहिम की जो तीसरा हमारा जो हल्का होगा या जो सिलसिला होगा वो व्हाइट हाउस के करीब होगा, जो कि इंशाअल्लाह 8:15 बजे हम वहाँ पर पहुँचेंगे। आप तमाम हजरात से गुजारिश है, आप में से जो भी बागैरत मुसलमान है, जिसके अंदर खैरत है ईमान की, जिसके अंदर हमियत है ईमान की, कि अपने उलमाए किराम की इस मुहिम में सपोर्ट करें, मदद करें और कल 8:15 बजे व्हाइट हाउस के करीब के इलाके में पहुंचे। इंशाअल्लाह ताला इस मुहिम का तीसरा हल्का वहाँ पर मुनाकिद होगा और इससे ज्यादा तफसीली गुफ्तगू करना मकसद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस तरह के मुनकरात से और गुनाहों से बचाए और अपने उमूमी अज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।